and tell 6 BMO में और All 6 bonding. BMO BMO में 0 and ABMO 0 में. in ABMO. So यहाँ पर yes, there are 3 molecular bonding molecular. So ये 6 यहाँ पे जाएंगे और anti bonding में there will be no electrons. So bond order कैसे निकालते हो? What is the way to calculate the BMO Number of electrons in BMO. BMO electrons minus Bond two. ABMO electrons by 2. So bonding Bond order 3. orbital के electron Bond order will come minus anti-bonding molecular orbital के electrons and divided by 2. So this will become what? 6 minus 0 divided by 2. Okay, and that is 3. ठीक है? And then if they ask you paramagnetic या diamagnetic, तो 6 कैसा number है? Diamagnetic. Magnetic character. 6 is which type of number? Odd number or even number? even. So 6 is an even number. Who is the unfaithful even number? 2 2 के लिए हमें बस दिक्कत होती है, बाकी 6 is a diamagnetic and odd number is going to be a paramagnetic species. And that means किसी ने ये पूछा था, what does N stand for? N stands for Number what? of unpaired electrons. Yes, unpaired, number of unpaired electrons. So in diamagnetic species, how many unpaired electron you have? 0. 0. The magnetic moment will also be equal to 0. ठीक है? तो इस मेथड से क्वेश्चंस को क्वेश्चन की सॉल्विंग कर पाओगे? Yes ma'am. गुड. एंड देखो कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, समटाइम्स यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस कि दे विल आस्क यू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर. Ma'am, please show the last slide just for a minute. ठीक है? Okay, sometimes the question may be like find the bond order या फिर कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, कुछ भी इस टाइप की चीज आ सकती है. फॉर लाइक तुम्हें दे दिया जाए मॉलिक्यूल्स KO2, K2O2 and you have K2O. इस टाइप के 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए जाए. सो टेल मी, हमने क्या पढ़ा था हमारे सिलेबस में? क्या स्पीशीज होती थी सिलेबस में? Diamagnetic. Diatomic. Diatomic होनी चाहिए. But see, they are containing more than one atom. Yes ma'am. तो क्या करें हम लोग इस केस के लिए? हमारे Convert सिलेबस में करेंगे. डायटोमिक स्पीशीज है एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी लेस देन 20. दैट मींस हमें सिर्फ उतने क्वेश्चंस करने हैं, मतलब अगर 2 एटम्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस देन 20, मतलब हमें एटॉमिक नंबर किसके बियॉन्ड नहीं जाना है? किसके बियॉन्ड नहीं 20. जाना है? 10 के ऊपर नहीं जाना है. 10 + 10 विल बिकम 20. सो हमें एटॉमिक नंबर 10 के बियॉन्ड नहीं जाना है, मतलब मैक्सिमम हम लोग नियॉन तक जा सकते हैं, फ्लोरीन नियॉन तक. सोडियम पोटेशियम को भी अपन को नहीं लेना है. तो अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको डायटोमिक स्पीशीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोजिंग दिस इज अ क्वेश्चन, तो हम इसे कन्वर्ट टू डायटोमिक स्पीशीज एंड उसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस देन 20. तो कैसे कन्वर्ट करोगे? एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? Ma'am, we have to find the bond order. Find the bond. बॉन्ड ऑर्डर तो पूछा है, मॉलिक्यूल्स तुम्हें ये दिए हुए हैं, तो कैसे कन्वर्ट करोगे अपने सिलेबस के हिसाब से? हाउ विल यू कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस? How will you convert according to break We will break करके into K plus and O2 Yes. minus. KO2 को लिखोगे सिंपल एज K plus O2 and O2 माइनस. ठीक है, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू डायटोमिक स्पीशीज. O2 माइनस K को भगा दो क्योंकि वो उसका एटॉमिक नंबर नियॉन के बियॉन्ड जा रहा है. हमें नियॉन से कम वाले ही एलिमेंट्स रखने हैं. तो किसका बियॉन्ड है आफ्टर नियॉन? किसका बियॉन्ड नियॉन जा रहा है? K. तो हम लोग K को हटा देंगे. तो अगर हम K को हटाते हैं तो इट विल बिकम व्हाट? O2 माइनस. इज इट डायटोमिक? Yes ma'am. Yes, And ma'am. Yes, now ma'am. just check, is the total number of electrons? What will be the total number of electrons? Odd होंगे मैम. Ma'am, 17 So electrons. this total number of electrons will become
that is 8 plus 8 plus 1. So is it a part of syllabus? Diatomic Yes, is ma'am. Yes, ma'am. and total number of electrons are Yes, also ma'am. less than 20. Similarly, K2O2 को किसमें convert करोगे? O2 O2 minus 2. O2 minus. Okay. So therefore now it is becoming, see, it has become diatomic. That means it is a part of syllabus, and double cross check करने के लिए you will calculate the total number of electrons. So 18. number of electrons will become what? Plus 2, that 18. is 18. 18 Again, it is electrons. a part of syllabus. ऐसे ही KCN को किसमें convert करोगे? Cn minus. Cn minus. So again, it will become part of the syllabus. Can you get it? अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल जो है वो more than 2 elements, 2 atoms का होगा, तो तुम्हें कैसे उसको convert करना है? Can you follow this? Yes, ma'am. If in the question there are more than two atoms, then how will you convert them according to the syllabus of MOT? Can you get it now? Ma'am, can you please explain again? I'm just converting them to their ions. ठीक है, हमने पोटेशियम को भगा दिया और उसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. एंड मैम रिमूव उसे करना जिसमें 10 से ज्यादा हो. Yes, जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ओके ज्यादा. ओके. ओके, क्योंकि हमें 10 से कम वालों को रखना है. दिव्य, मैंने तुम्हें लिखवाया था लास्ट टू लास्ट क्लास में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज क्या आती हैं? तुमने शायद ये पूछा भी है डाउट. हाँ यस मैम, 0 फ्रैक्शनल और इंटीजर में होती हैं. हाँ, नेगेटिव आती है क्या कभी? मैम बट इंटीजर तो नेगेटिव में जाता है ना. तो मतलब हमें तो पॉजिटिव ही रखनी है ना. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? तुमने ये डाउट में भी पूछा है शायद. आई थिंक समवन हैज सेंड इट एज अ डाउट आल्सो. ठीक है, Ma'am, the बॉन्ड ऑर्डर का worksheet's फॉर्मूला क्या first होता है? question is this. And Yes, ma'am, the ma'am. answer is given wrong. Answers can have a negative quantity. Yes, ma'am. So tell me bond order, and then it is anti-bonding molecular or orbital के electrons divided by 2. If you want to make it negative, अगर supposing तुमने बोला चलो मैंने मान लिया कि bond order negative आ रहा है. Bond order negative कब आएगा? कब मैम आएगा? जब ABMO जब में ज्यादा ABMO ज्यादा ज्यादा हो जाए. BMO से. जब ABMO के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से. Is it a stable condition or an unstable condition? अनस्टेबल कंडीशन. Unstable. Unstable. So more the electrons go in anti-bonding, it creates stability More or unstable. instability? Instability. Instability. Unstable. Unstable condition. So tell me yourself, can bond order be negative? नो मैम. No, नो ma'am. मैम. ठीक है, तो ये तुमने मैम बट थ्योरी वाइज भी नहीं लिखा जाएगा क्या मैम, अगर लिखना हो सिर्फ तो? तो पहले बेटा तो किसकी मैम एनर्जी थ्योरी में केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे हम लोग फिर. हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके. तो बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि एनर्जी किसकी कम होती है? बॉन्डिंग की कि एंटी बॉन्डिंग की? एंटी-बॉन्डिंग. Antibond. बॉन्डिंग की कम बॉन्डिंग की तो होती पहले है. Bonding की कम बॉन्डिंग होती है. होंगे, उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फिर एंटी बॉन्डिंग होगा. तो एंटी बॉन्डिंग के कभी भी बॉन्डिंग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. मैम जो आपने अभी वर्कशीट दी है मैम, उसका पहले क्वेश्चन में आंसर गलत दिया है. तो बेटा करेक्शन कर लेना. नेगेटिव दिया. मैम यस, मैम जैसे आपने पहले बताया था कि कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब वो बॉन्ड कंपाउंड बनता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है. तो क्या उस टाइप के कंपाउंड्स में ऐसा केस नहीं होता है? क्या क्या क्या? ABMO के इलेक्ट्रॉन तो जाता है. कंपाउंड ही क्यों हुआ? अगर वो स्टेबल नहीं है तो कंपाउंड ही क्यों होगा? जो चीज हो ही नहीं रही है उसको क्यों काउंट कर रहे हो? ओके. जैसे तुमने He2 कोशिश करी ना बनाने की, क्या बना? No, ma'am. No, ma'am. Bond और 0 आ गया. सेम थिंग. ओके, Yes, ma'am. तो अभी तुम क्वेश्चंस कर पाओगे रिलेटेड टू Yes, ma'am. molecular orbital theory? Will you be able to do the questions Yes. related to
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो अब हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। अब हम लोग वीक फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये केमिकल बॉन्ड्स नहीं है, ये स्पेशल टाइप के फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं, उनकी तरफ स्टडी कर रहे हैं। सो we'll move to the next thing, other types of bonds, other types of bonds। ठीक है, उसमें सबसे पहली कैटेगरी में आता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है क्योंकि जो भी हमारी कुछ एनोमलस बिहेवियर आ रहे हैं कुछ कंपाउंड्स में, वो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब बेसिकली हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। बट ये स्पेशल कुछ कंपाउंड्स हैं जो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, एंड इसके लिए हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पोलैरिटी डिफरेंस आएगा एंड हाइड्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ज्यादा पोलैरिटी डिफरेंस आता है। सो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड इसको नाम दे देते हैं। ओके सो यहाँ पर कब क्रिएट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी जो कंडीशन है वो ये है, व्हेन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और कौन से होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, FON फोन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, जैसे कि तुमने फोन वेरी गुड बोला, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा, टू फॉर्म a covalent bond with one atom and one atom. Due to high electronegative difference, weak interaction with other atom occurs, और जो ये weak interaction है with other atom, this is only called as hydrogen bond. This only is called as hydrogen atom. So जब हमारा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है with electronegative atom like फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ with a covalent bond, तो वो दूसरे एटम के साथ वो क्या करने लगता है, एक और बॉन्ड क्रिएट करने लगता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सो तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो आई विल शो यू बाय एग्जांपल्स, लाइक फ्लोरीन और हाइड्रोजन कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, फ्लोरीन और हाइड्रोजन कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, यस मैम, क्या बनाएंगे, HF मॉलिक्यूल। नाउ सी, एक H और दूसरे फ्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्डिंग आएगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दे विल मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट फाइन? Covalent bond. Yes, ma'am. Okay. And this will make another covalent bond. Now this covalent bond is which type, polar or non-polar? Polar. Polar covalent Polar. bond or a non-polar covalent bond? Ma'am, polar. Polar covalent bond. Why it is a polar? High Ma'am, electronegative. because fluorine is high more electronegative electronegative to to hydrogen. hydrogen partial charge development. Yes, electronegative difference. So fluorine develops because of high electronegative difference. Fluorine tends to develop a partial negative charge and partial positive charge, and this develops a partial positive and partial negative charge. Now देखो दूसरे मॉलिक्यूल पे, ये एक मॉलिक्यूल था और ये दूसरा मॉलिक्यूल था, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है जो कि एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू द पार्शियल चार्जेस क्रिएटेड हियर एंड हियर। सो एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक और बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर एक और HF मॉलिक्यूल होगा तो उसके साथ जा रहा होगा, और इधर एक और HF मॉलिक्यूल होगा उसके साथ जा रहा होगा। तो जो ये सॉलिड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो सॉलिड ग्रीन लाइन है, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, Covalent bond. Covalent yes, bond. it is representing the
covalent bond between hydrogen and fluorine, and this dotted line is representing what? Hydrogen bond. Hydrogen bond. हाइड्रोजन Yes, so due to high polarity difference, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एक और force of attraction generate हो जाता है, and that is called as hydrogen bond. This is also called as a dipole-dipole bond, क्योंकि देखो इसका dipole कैसे create होगा, HF का dipole कैसे create होगा, in which direction will be the dipole? From H Right to side. Positive to From H to negative. Where is the H to direction of dipole? towards Right. F. towards F Towards F. from H. And see, this is also towards F, isn't it? तो यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में जो डाइपोल है इस वे में क्रिएट हो जाता है, एंड दिस इज आल्सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं. सो दिस इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड is produced जब दो मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों में डाइपोल प्रेजेंट हो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो एक वीक फोर्स जनरेट होता है, उसको हम लोग कैसा फोर्स बोलते हैं? इस मॉलिक्यूल के अंदर भी डाइपोल है, इसके अंदर भी डाइपोल है, सो उनके बीच में जो एक फोर्स जनरेट होता है, जो यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी, Hydrogen bond. this is a special category, so this is also called as dipole Dipole interaction. The force which is generated between two molecules in which both of them are having dipole moment is called as dipole interaction. ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इट इज अ वीक बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. लाइक सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक. ionic. देन कौन होता है? कोवलेंट. Covalent. आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एंड देन उसके बाद तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड होगा, एंड सबसे वीकेस्ट कौन होगा? ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड विल बिकम द वीक बॉन्ड. इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज अ वीक बॉन्ड. Fine. And ma'am, coordinate bond. Coordinate is a type of a covalent bond only. Didn't we do Okay, that? ma'am. It is a type of, हम क्या करते थे, जो Yes, डोनर ma'am, होता था yes, उसको ma'am. पॉजिटिव चार्ज दे देते थे, और जो एक्सेप्टर होता था उसको नेगेटिव चार्ज देते थे, और एरो को हम लोग सिंगल लाइन में कन्वर्ट करते थे. Do you remember Yes, that? ma'am. Yes, ma'am. तो कोऑर्डिनेट कोई स्पेशल नहीं होता है, उसको हम लोग जनरली कोवलेंट बॉन्ड में ही ट्रीट करते हैं. एंड इनफैक्ट तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में बहुत जगह ऐसा बना होगा जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहिए, बट उसको वो लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैम वो यस मैम, मैम जैसे ओजोन वाले में भी एक था हाँ, इसी ऐसे तरह ही से. होते हैं, क्योंकि वो कोई स्पेशल टाइप का बॉन्ड नहीं होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मतलब यू कैन से कोवलेंट बॉन्ड का ही एक वेरिएशन ही है. ठीक है, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर आगे का पार्ट फिनिश करते हैं. सो अभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा नहीं बना सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए. सो व्हाट आर द कंडीशंस टू मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड? सो विल गो विद दैट. कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सबसे पहली कंडीशन क्या, नाम ही बता रहा है. एक्सक्यूज मी सबसे मैम. यस, मैम बस एक छोटी सी चीज बता दीजिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में दो मॉलिक्यूल्स, जिन दोनों मॉलिक्यूल्स में डाइपोल फोर्स हो, दोनों ही अच्छा, मॉलिक्यूल्स okay, में डाइपोल मोमेंट हो, तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो नया फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. बेटा प्लीज एंटर विद योर नेम. किसी ने अभी किसी और नेम से एंटर किया है, आई डोंट नो दिस पर्सन, सो आई एम रिमूविंग दिस. तो प्लीज एंटर विद योर नेम whichever is used in the registration. Okay, so please enter with your names. Okay, मतलब supposing if you are using your brother or sister's name, so please जब यहाँ पर enter करो ना तो उसे rectify कर देना.
फाइन. और you have, even if you're changing your device, तो अपना name एक बारी rectify मतलब उसमें change कर लेना. So हाँ, तो पहले इसमें बताते. तो बताओ सबसे mandatory condition क्या होगी? Presence of Presence of hydrogen. hydrogen. Yes. So the Hydrogen should molecule be must contain, the molecule must contain a highly electronegative atom, like Fon element. मतलब generally highly electronegative तो पूरे periodic table में कौन से होंगे? Fon element. Fon element, which will be linked to hydrogen atom. अब ये condition क्यों चाहिए? ये condition क्यों चाहिए? क्योंकि अगर electronegativity ज्यादा होगी, अगर electronegativity high ज्यादा होगी, तो polarity जो का difference है वो high होगा और ये force जो है generate हो पाएगा. अगर electronegative difference कम हो गया तो क्या ये इतना strong force generate हो पाएगा? No, ma'am. नहीं जनरेट हो पाएगा. तो इसलिए हमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की जरूरत है. दूसरा चीज क्या है? द साइज. Ma'am, can you please turn to the last slide for just a minute? Yes. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So दूसरा चीज, the size of electronegative atom, it should be small. क्यों स्मॉल होना चाहिए? Do you remember charge density? एक चीज मैंने तुम्हें कराई थी. Do you remember Yes, what ma'am. is charge density? Charge density, that was charge upon volume. Charge upon volume. तो चार्ज देखो हर एक केस में एक ही जनरेट होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम कम होगी तो चार्ज जो है वो कम वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा या वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा? Strong electrostatic force. ओके. तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा तो पावर टू पुल द अदर एटम विल बी स्ट्रॉन्ग और वीक? Strong, ma'am. Strong. तो हमें क्या चाहिए होता है? स्मॉल चाहिए होता है. स्मॉल हमें किस में मिलता है? फॉन एलिमेंट्स में मिलता है. डू यू रिमेम्बर लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस वैसे भी कम हो जाता था, तो इसलिए हमारे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस एलिमेंट्स में मिलती है? हाइड्रोजन Fon elements में ही मिलती है. एंड कभी कभी बहुत ही एक्सेप्शनल केस में कभी क्लोरीन शो कर देता है. अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैंडेटरी कंडीशन ही ये है, इजी तरीके में याद रखने के लिए, कि अपने को फॉन एलिमेंट्स ही लेने हैं. कैन यू गेट इट? Yes. ठीक Yes, है. ma'am. सो एक तो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें HF मॉलिक्यूल में करा दी है. नाउ लेट अस डू फॉर वाटर मॉलिक्यूल. तो व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? Bend shape. Bend. Bend shape. 104. Okay, so what is the bend shape? मतलब you can say this is one water molecule. Okay, so ये देखो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? Because of the high electronegative difference, this will have partial positive, and this will have partial negative. Dipole generate हुआ? Negative. Can you check the Yes, dipole being generated in this case? Yes, ma'am. Dipole generate होगा. Okay, ये दूसरा water molecule आया. ठीक है. And over here there is another water molecule. Okay, then in this case there is another water molecule and all of them are with bend shapes. क्योंकि हमने पढ़ा ही था कि water molecule का bend shape होगा. Now see what will happen in this case due to the polarity difference being generated. What will happen? ये जो hydrogen है ये इस वाले water molecule की तरफ attract होगा या नहीं होगा? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then Yes, similarly ये वाला water molecule इसकी तरफ attract होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then again this oxygen will start attracting this hydrogen, Yes, ma'am. and this hydrogen will start attracting with this hydrogen. So tell me, one water molecule is surrounded by how many water molecules through hydrogen 4. bonding? 4. 4. This is a very popular question. So one water molecule
one water molecule is surrounded by four other water molecules by which bonding? हाइड्रोजन Hydrogen Hydrogen bonding. bonding. Hydrogen bonding. And four क्यों आ रहे हैं? Why four? Not why not two? Why not two? Because of its bent shape. वो जगह दे रहा है, ऊपर में दो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की जगह दे रहा है, क्योंकि ऊपर का एरिया पूरा खाली है, उस वहां पे लोन पेयर पड़े हुए हैं, और लोन पेयर तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशीज होते हैं, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? Yes. करेंगे। Yes, ma'am. ओके, तो वो ऊपर स्पेस दे रहा है कि अट्रैक्ट करने के लिए, तो बिकॉज ऑफ इट्स बेंट शेप इट इज एबल टू अट्रैक्ट हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स? 4. 4. Similarly, tell me one HF molecule is attracting how many HF molecules through a hydrogen bond? 2. 2 Two. only. Because of its Two. which shape? Linear shape. Linear shape. So it is because of its linear shape, so it is able to attract only 2 of them. Molecule by hydrogen bond, क्योंकि वहां पे जो शेप है वो कैसा आ रहा है? लीनियर आ रहा है। ओके, सो यहाँ HF मॉलिक्यूल का मैंने तुम्हें कराया था, सो चेक करो, एक HF मॉलिक्यूल क्या करेगा? देखो ये वाला अगर हम रेफरेंस में ले लें तो क्या करेगा? एक इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, एक लेफ्ट से अट्रैक्ट कर रहा है, एक राइट से अट्रैक्ट कर रहा है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। कैन यू चेक इट आउट? कैन यू चेक इट आउट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स बेंड शेप, ऊपर क्या कर रहा है? वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। मैम हाँ, हम जो आपने जिस वाले H2O मॉलिक्यूल पे सर्कल किया है उसके जस्ट अबव एक और हम H2O मॉलिक्यूल अगर लगा देते नहीं लगा सकते ना, क्योंकि फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे ना, इतना भी पास में नहीं ला सकते ना। समझा भी? अगर तुम इनके मिडिल में एक और लेके आओगे तो डिस्टेंस उनके बीच में बहुत डिक्रीज कर जाएगा, एंड दी ऑक्सीजन एटम्स, या फिर मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस करके चीज बताई थी ना, फाइट फॉर स्पेस, दैट विल स्टार्ट हैपनिंग। मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने इतनी स्पेस बना दी, बट रियल में इतना स्पेस थोड़ी ना होता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा है। कैन यू फॉलो? Yes, Can you ma'am. follow? Okay. So now coming to yes. तो ऐसे ही हम लोग और मॉलिक्यूल्स के लिए भी मतलब करते रहते हैं, मतलब और मॉलिक्यूल्स के लिए चेक करते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट अस डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। सो व्हाट विल बी द शेप ऑफ अमोनिया? Pyramidal. For example, hydrogen bonding in ammonia. Okay, so we'll do it in ammonia. So ammonia का शेप तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था ना, मैंने बार बार बोला था कि उसका बॉन्ड एंगल याद भी करना है। 107. 107. Yes. ठीक है, सो यहाँ पर इसको हमें पिरामिडल शेप में बनाना है। तो पिरामिडल शेप कैसा होता है? What is the pyramidal बेस shape? ट्रायंगुलर होता है और ऊपर एक एन होता है। Yes. So there will be a triangular base with 3 hydrogen H atoms. atom. Okay, fine. तो यहाँ पर फिर से वही वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखो, ये तुम्हारा लोन पेयर आ गया। फाइन। सो ये यहाँ पर जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेता था क्योंकि ऊपर स्पेस ज्यादा खाली होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाता है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही लोन पेयर है, बिकॉज ऑफ हैविंग मैम वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया।
सॉरी मैंने बोला था वाटर मॉलिक्यूल दो अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाता है क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर्स है ना, Yes, ma'am. तो हर एक लोन पेयर के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डेफिशिट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगता है। अभी किसी ने पूछा था ना एक और ला सकते थे, तो मैंने एक्सप्लेन किया था ना नहीं ला सकते। अभी रीजन समझ में आ रहा है ना, नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Due to repulsion. यस, ड्यू टू द रिपल्शन एंड प्लस लोन पेयर भी नहीं है ना, किसी को अट्रैक्ट Yes, करने के लिए ma'am. भी तो Lone चाहिए, pair भी नहीं है. कोई अट्रैक्ट करने वाला ही नहीं है तो कैसे लेके आओगे? कोई अट्रैक्ट करने वाला है ही नहीं। एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा लोन पेयर दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बताओ कैसे होगा अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस वाला अमोनिया का लोन पेयर होगा, फिर यहाँ पर एक दूसरा वाला अमोनिया होगा, उसका लोन पेयर होगा, एंड यहाँ पर थर्ड वाला अमोनिया होगा, उसका लोन पेयर होगा। सॉरी एन होना चाहिए यहाँ पे, ये होगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक अमोनिया का हाइड्रोजन होगा। तो ये तीन अलग अलग एटम्स होंगे। ओके, सो नाउ टेल मी कितने लोग सराउंड करेंगे इसे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिट स्पीशी। अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिट स्पीशी एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सो टेल मी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर सराउंडिंग दिस सिंगल अमोनिया मॉलिक्यूल? 4. Yes. 4. So 4. Four So ammonia. there are again 4 surrounding what ammonia molecules. Okay, can the fifth molecule come? No, ma'am. No, ma'am. No, नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पे 4 क्यों थे? अब समझ में आया, दो लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहे थे और दो बॉन्डेड पेयर को। यहाँ पे 4 क्यों है? Because what is happening? Ma'am, One because there lone are pair. 3 hydrogen and 1 lone pair. Yes, and it has got a Yes, pyramidal and structure. 3D में ज्योमेट्री है, तो 3D में ज्योमेट्री है तो हर तरफ से लोगों को अट्रैक्ट कर ले रहा है। Can you get it? Can you people get it? Yes, ma'am. So shall we move to the next thing? तो अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। तो you remember alcohols क्या होते हैं ऑर्गेनिक में? What do you mean by alcohols? The group of OH. Yes. OH group. So next example we are going with hydrogen bonding in alcohols. Bonding in alcohols. What are alcohols? You said it is ROH. You know alcohols are highly soluble in water. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. They are highly soluble in water. Now वैसे तो हम बोलते हैं like dissolves like, तो जो भी organic compounds हैं वो कैसे होते हैं? Ionic या covalent? Covalent. Covalent. Okay, तो covalent compounds क्या पानी में dissolve होंगे? No, ma'am. No, ma'am. मैम ये एक्सेप्शन की तरह हम है, वरना एक्सेप्शन नहीं था, होगा। आपने बताया था Why हाइड्रोजन बॉन्डिंग। exception? Why it is an हाइड्रोजन exception? बॉन्डिंग की मैम वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की Again, वजह Due to hydrogen bonding. Yes. मैम very आपने good. स्टार्टिंग में भी बताया था। Yes, due to Yes, hydrogen ma'am. bonding. Yes, it ma'am. will, again, कार्बोक्सिलिक एसिड इसके लिए yes, सबके it लिए will बताया। again create this thing. So see over here, R represents any kind of alkyl group, मतलब मिथाइल, इथाइल कुछ भी ले लो, उस टाइप से कोई भी alkyl group हो जाएगा। और ये देखो ये बेंड शेप आएगा इसमें भी इस तरीके से। So से check it out, क्या होगा? पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इनके बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये जो डॉटेड बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen bond. ओके, तो अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएटेड होती है। क्यों क्रिएटेड होती है? पोलैरिटी मैम डिफरेंस। बेंड स्ट्रक्चर होता है। नहीं, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कंडीशन टू मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड? इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें- एलिमेंट मैम इज प्रेजेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन डिफरेंस। प्रेजेंट है इसलिए Fawn हाइड्रोजन बॉन्डिंग element. प्रेजेंट होती है। यस मैम। और ऑक्सीजन A किसके fawn साथ element is प्रेजेंट present है? with विद hydrogen. हाइड्रोजन। मैम H and O आर प्रेजेंट। यस, जहां पर भी N और H की डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी, जहां पर भी O और H की डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी, जहां पर भी F और H की डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी, वहां क्या जनरेट हो जाएगी?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन यहाँ पर भी देखो O और H की डायरेक्ट बॉन्डिंग है, दैट इज व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज गेटिंग क्रिएटेड। कैन यू गेट इट? यस मैम। ओके, सेम वे में